السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے، کسی نے سوال کیا ہے کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ نماز میں صلاۃ کا حکم آیا، اذان میں صلاۃ کا حکم آیا، اقامت میں صلاۃ کا حکم آیا ہے، تو یہ امام اور مولوی نماز کیسے پڑھا رہا ہے اور ہم لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ رکوع، سجود، اٹھنا بیٹھنا، سلام پھیرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس مجھے دلیل سے اور حوالے کے ساتھ صفحہ نمبر، پیج نمبر، کتاب نمبر، اس سب کے حوالے سے مجھے پیش کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، نماز کے مختلف اجزاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کی پوری تفصیل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجود کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں رکوع کا ذکر ہے اور سجود کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے پیارے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ قیام کیجئے، تو اس میں قیام کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں آیت نمبر 20، فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا آپ کو میسر ہو قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، تو اس آیت سے قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 78، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید میں نماز کے مختلف اجزاء کا ذکر ہے، رکوع کا، سجود کا، قیام کا، قرات کا، اور مکمل تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6667، جس میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تیری نماز صحیح نہیں ہوئی۔ فرجع فصلی، وہ گیا، اس نے نماز پڑھی، ثم سلم، پھر آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ قال، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، وعلیک ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وعلیکم السلام، وعلیک، واپس جا، دوبارہ جا کے نماز پڑھ، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جا، نماز تیری صحیح نہیں، نماز واپس پڑھ۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ فعلمنی، مجھے آپ نماز سکھائیے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلہ کی طرف منہ کر لے، فکبر، اور تکبیر کہہ، وقرأ بما تیسر معک من القرآن، جتنا تمہیں قرآن آتا ہے قرآن کی تلاوت کر، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، ثم ارفع رأسک حتی تعتدل قائما، رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جا، اس طرح کے صحیح طریقے سے کھڑا ہو جا، ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، اور اس کے بعد سجدہ کر، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، ثم ارفع حتی تستوی وتطمئن جالسا، اور اطمینان کے ساتھ پھر ایک سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جا، ثم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، اس کے بعد دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کر، ثم ارفع حتی تستوی قائما، اور اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد کھڑا ہو جا، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، اور اس طرح پوری نماز میں کر، یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً کھڑا ہو جا، اور یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسی طریقے پر نماز پوری پڑھ۔ تو یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کر، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جا، اللہ اکبر کہہ، قرآن پاک کی تلاوت کر، رکوع میں جانا ہے، رکوع اطمینان سے کرنا ہے، رکوع سے جب کھڑے ہو جائیں تو اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو جا، اور پھر سجدے میں جا، اطمینان کے ساتھ سجدہ کر،
और सजदे से सर उठा के आराम से बैठ जा, फिर दूसरा सजदा कर, आराम और इत्मीनान का सजदा कर, और दूसरा सजदा करने के बाद सीधा फिर अगली रकात के लिए खड़ा हो जा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा इस तरह तुमने सारी नमाज को मुकम्मल करना है। बुखारी शरीफ 6667। इसी तरह मुस्लिम शरीफ में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का जो तरीका सिखाया है मौजूद हदीस 904 नंबर हदीस है, और इसका दूसरा नंबर है 404। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करती हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका सिखाया। तो उस हदीस में जो मैंने आपको सुनाई बुखारी में, वो अकेले नमाज पढ़ने का तरीका है, और इसमें इमाम के पीछे किस तरह नमाज पढ़ी जाए ये तरीका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इसके दो नंबर 904 और मुस्लिम दूसरा नंबर 404। हज़रत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज सिखाई और फरमाया, इज़ा सल्लैतुम फ़अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो सफ़े सीधी कर लो। सुम्मा लियउम्मकुम अहदुकुम, फिर तुम में से कोई एक इमाम बने। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब वो तकबीर कहे तुम तकबीर कहो। वइज़ा क़ाल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जब वो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तुम आमीन कहो। युजिबकुमुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस आमीन को, तुम्हारी इस दुआ को कबूल फरमाएगा। फ़इज़ा कब्बरा वरका फ़कब्बिरू वरकाऊ, जब वो रुकू के लिए तकबीर कहे और रुकू में जाए तुम भी रुकू की तकबीर कहो, रुकू में जाओ। फ़इन्नल इमाम यरकऊ क़ब्लकुम व यरफ़उ क़ब्लकुम, इमाम तुमसे पहले रुकू करे और इमाम तुमसे पहले रुकू से उठे। और फरमाया जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तुम कहो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। और जब इमाम सजदे के लिए जाए, वइज़ा कब्बरा व सजदा फ़कब्बिरू वस्जुदू, इमाम जब तकबीर कह के सजदे में जाए तुम भी तकबीर कह के सजदे में जाओ। फ़इन्नल इमाम यस्जुदु क़ब्लकुम व यरफ़उ क़ब्लकुम, इमाम तुमसे पहले सजदा करे और इमाम तुमसे पहले सजदे से सर उठाए। और फरमाया इस तरह करना है। वइज़ा काना इंदल क़ादति, जब कादा अखीरा में बैठ जाओ, यानी 2 रकात के बाद या 4 रकात के बाद जब कादा में बैठ जाओ तो तुमने ये पढ़ना है अत्तहियात अत्तहियात अत्तय्यिबात अस्सलावातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का तरीका भी सिखाया कि जब इमाम बनाओ तो फिर इमाम के पीछे खड़े हो जाओ और इमाम तकबीर कहे उसके बाद तुमने तकबीर कहनी है। इमाम जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तुम आमीन कहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस दुआ को कबूल फरमाएगा। इमाम रुकू के लिए जाए तुम उसके बाद रुकू के लिए जाओ, इमाम सजदे के लिए जाए तुम उसके बाद सजदे के लिए जाओ, इमाम सजदे से सर उठाए तुम उसके बाद सजदे से सर उठाओ, और आखिर में अत्तहियात पढ़ो। और अगली हदीस में है 905 में कि वइज़ा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि ये जो हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, वइज़ा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, तो फरमाते हैं हुवा इंदी सहीहुन, मेरे नज़दीक ये सही हदीस है, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। और इसकी पूरी सनद इस हदीस की वइज़ा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, मुस्लिम शरीफ में हदीस है 905, और यही हदीस नसाई शरीफ में 922। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा जुअल इमाम लियुतम्म बि, इमाम इसलिए बनाया जाता है तुम ताकि तुम उसकी इक्तिदा करो। वइज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब वो तकबीर कहे तुम तकबीर कहो। वइज़ा क़रा फ़अनसितू, जब वो किरात करे तुम खामोश रहो, यानी इमाम जब किरात करे तुम खामोश रहो। वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तुम कहो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। इसी तरह अगली हदीस है 923, उसमें भी यही है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि तुम उसकी इक्तिदा करो। वइज़ा क़रा फ़अनसितू, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो। और मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर है 1298। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि जब हम इमाम के पीछे हों तो क्या हम किरात करें या ना, तो आपने फरमाया ला किरात माल इमाम फी शैइन, जब आपने इमाम के पीछे होना है तो कुछ भी नहीं पढ़ना इमाम के पीछे। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 313।
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मन सल्ला रकातन लम यक़रा फ़ीहा बि उम्मिल कुरान, जिसने नमाज की कोई भी रकात पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नहीं होगी। फलम युसल्ली, उसकी नमाज नहीं होगी। इल्ला अन यकून वराल इमाम, सिवाय कि इमाम के पीछे हो। जब अकेला नमाज पढ़े तो सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर इमाम के पीछे है तो फिर सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हदीसुन सही, सही हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 313, और इसी तरह इब्न माजा में हदीस नंबर 850। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन कान लहु इमामुन, जिसका इमाम हो, फ़क़िरातुल इमाम लहु क़िरातुन, तो इमाम की क़िरात उस मुक़्तदी की क़िरात है कि इमाम के पीछे उसने क़िरात नहीं करनी। इस्नादु सही, सही हदीस है ये। सुनन अबी दाऊद में हदीस है 822, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। काल सुफियान, इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, लिमन युसल्ली वहदा, ये उसके लिए जो अकेला नमाज पढ़े, यानी जो अकेला नमाज पढ़ता है उसके लिए सूरह फातिहा का पढ़ना लाजमी है। और जो इमाम के पीछे पढ़ता है तो इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात है। जैसे कि आपने सुना मुस्लिम में 1298 नंबर हदीस है, ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि इमाम के पीछे कुछ नहीं पढ़ना। और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस 313, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा कि इमाम के पीछे क़िरात नहीं है। हाँ, अकेले हैं तो सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है। और यहाँ अबू दाऊद शरीफ में 822 में यह है कि इमाम के पीछे नहीं पढ़ना, ये अकेले हों तो उसके लिए सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है। और अगर इमाम के पीछे है तो फिर आपने खामोश रहना है। अगर ऊंची आवाज़ से क़िरात करना है तो आपने सुनना है, और अगर ऊंची आवाज़ से नहीं भी करना तो क़िराअतुल इमाम, कि इमाम की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात है। इमाम के पीछे क़िरात करने की दो हदीसें पेश की जाती हैं अबू दाऊद शरीफ से 823 और 824 में, जिसमें कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, साहबा पीछे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के थे और उन्होंने क़िरात की, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि क़िरात नहीं करनी सिवाय सूरह फातिहा के। तो इसमें यह साबित है कि सूरह फातिहा पढ़नी इमाम के पीछे, लेकिन ये दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं। इसमें मक़ूल मुदल्लिस से अनस रिवायत करता है। 823 हदीस में भी अन मक़ूलिन अन महमूद बिन रबी, और 824 में भी अन मक़ूलिन अन नाफ़ी बिन महमूद बिन रबी। दोनों हदीसों में मक़ूल जो मुदल्लिस है, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तबक़ातुल मुदल्लिसीन में इसका नाम लिखा है, मक़हूल फरमाते मुदल्लिस है। इसी तरह अबू ज़रा ने कहा कि ये मुदल्लिस है, इमाम ज़ाबी ने कहा ये मुदल्लिस है, और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कहा कि ये मुदल्लिस है। तो मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो उसकी रिवायत जो है वो ज़ईफ़ होती है जब तक उसका कोई शाहिद ना हो। यही हज़रात जो अहादीस को ज़ईफ़ करने के माहिर हैं और मुदल्लिस की उन्होंने रट लगाई हुई है, लेकिन यहाँ उनको मुदल्लिस नज़र नहीं आता, मक़हूल, जिसको इमाम इब्न हजर अस्क़लानी, इमाम ज़हबी, इमाम इराकी, तमाम मुहद्दिसीन कहते हैं कि मुदल्लिस अन से रिवायत करता है। यहाँ एक और झूठ बोला जाता है कि इमाम मक़हूल जो है उसकी समात की तस्रीह मौजूद है महमूद बिन रबी से। कहाँ मौजूद है जी? मुस्नद अहमद में। बिल्कुल झूठ है। 5 हदीसें मुस्नद अहमद में, किसी एक हदीस में भी मक़हूल अन महमूद बिन रबी से कोई समात की तस्रीह मौजूद नहीं है। और 823 के बारे में बाज़ कहते हैं कि इसके आगे शाहिद 824, ये भी झूठ है, क्योंकि 823 में मक़हूल मुदल्लिस है, अन से रिवायत करता है, और 824 में भी मक़हूल मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है। तो दोनों हदीसें पक्की ज़ईफ़ हैं, जिनको ये पेश करके झूठ बोलते हैं। और तमाम हदीस जो मैंने आपको मुस्लिम से ज़ैद बिन साबित का फतवा और नसाई से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमान कि वैदा क़रा, जब इमाम क़िरात करे फ़अनसितु, तो तुम खामोश रहो। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 313 में जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फतवा कि अकेले हो तो सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी, और अगर इमाम के पीछे तो फिर लाजमी नहीं है। और 922 नंबर हदीस नसाई में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, वैदा क़रा, जब इमाम क़िरात करे फ़अनसितु, तुम खामोश रहो। तो बुखारी शरीफ से पूरी नमाज का तरीका, मुस्लिम शरीफ से नमाज का तरीका इमाम के पीछे किस तरह पढ़नी है, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मज़ीद इसकी तफसील अगली वीडियोस में आएगी, शुरू से आखिर तक नमाज का तरीका। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।